Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, Good that's morning. right. That's good morning. So now we have done so many series earlier also. 1 upon 3 plus 2 upon 5. So it is then 3 upon 9. तो क्या हो रहा है? How it is progressing? 3 में 2 इंटू न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए तो 5 आ गया नेक्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर. 5 में 2 इंटू 2 4 ऐड कर दीजिए तो आ गया 9 नेक्स्ट का डिनोमिनेटर. और 9 में 3 टू जा 6 ऐड कर दीजिए तो आ गया नेक्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर. ऑल राइट. So to find the sum of the series, Yes, sir. we have taken S as 0 and Sir, yes, 9 plus 6 is 15. 9 plus 6 is 15. Okay, 9 plus 6 is 15. Okay, it means there is correction in the series itself. All right. There is a mistake in this question itself. So that's clear. 15. Is this clear now? Now S equal to 0, which will hold the sum of the series. The D is for the denominator of the first term. Then we have started with the loop initially with 1. I is 1. So the first statement S equal to S plus I upon D will make it S as it will add 1 upon 3 into S. Then the value of denominator will update by adding 2 into I to D. तो 2 into I करके इसमें ऐड करेंगे तो it will become 2 ऐड हो जाएगा 5 हो जाएगी. ठीक है. देन यहाँ पे करने के बाद कंट्रोल यहाँ पहुंचा, I की वैल्यू हो गई 2. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट S इक्वल टू S प्लस I अपॉन D, तो I की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू 5 है तो 2 अपॉन 5 ऐड हो जाएगा. ठीक है. Is this clear, children? Yes, sir. Yes, sir. So no one has doubt. Okay, let's go for the next series. Now this series is the combination of two series. If you look at the denominator, this denominator is 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial and so on. So we have done the series of the factorials. And the numerator, if you see x to the power 2, x to the power 3, this we did right now. Only thing we have to start from 2. The first term is 1. So we have to take the initial value of the variable where we are going to store the sum as 1.0. तो जिसमें हम sum store कर रहे हैं वो इसलिए हमने 1.0 store कर लिया है. S की वैल्यू क्या हो गई है 1.0. x to the power n upon n, the last term of the series, it means we need two inputs. X भी unknown है और n भी unknown है. ठीक है. So here I have taken the input of two things. Now in the denominator we have got factorial. So f is taken initially as 1. सीरीज का सीक्वेंस सेकेंड टर्म 2 से शुरू हो रहा है तो यहां पे जो लूप चलाया है वो लूप कहां से चलाएंगे 2 से चलाएंगे. पहला स्टेटमेंट f इक्वल टू f इंटू आई, ये जो कर रहा है f में क्या आ गया, f इज इनिशियली 1, i की वैल्यू 2 है तो f में आ गया 1 इंटू 2. ऑल राइट. दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ 2. एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट वेयर वी आर एडिंग द वैल्यू, है ना, इन दैट स्टेटमेंट व्हाट इज रिटन, math dot pow x to the power I upon f. It means what? The value of I is 2. So what it will do? It will add x to the power 2 upon factorial of 2. That is 2 only. All right. X to the power I means x to the power 2 and factorial is already taken out. After this, the control will transfer to update statement. I will become 3.
एंड इफ द वैल्यू ऑफ n इज लेस देन 3 इट विल गेट इन द लूप एंड क्या करेगा, इसमें f में 1 into 2 तो ऑलरेडी था, इसमें क्या कर देगा इंटू 3 और जोड़ देगा, तो क्या आ गया ये 3 का फैक्टोरियल हो गया. And then next statement in the s it will add x to the power I means x to the power 3 upon factorial of 3 that is 6 and so on. Is this clear, child? So please explain again. All right, where you have got the confusion? Please speak out. Which point you have got confusion? See, the first term is 1.0. पहला टर्म क्या है 1. ठीक है, तो हमने इनिशियल वैल्यू s की 1 ले ली है. ठीक है, उसके बाद ये सीरीज चल रही है x की पावर n से लेकर n तक, तो हमने यहाँ x भी इनपुट कराया और n भी इनपुट कराया. देखिए मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ एरिया. ठीक है, इसके बाद फैक्टोरियल की सीरीज, फैक्टोरियल निकालने होते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके जनरेट करना है. तो वो वेरिएबल जिसमें फैक्टोरियल स्टोर करते हैं वो इनिशियली 1 लिया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में आप देखिए क्या है 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल है. ऑल राइट, अब ये जो सीरीज है वो कहां से चलना शुरू हो रही है 2 से, x की पावर 2 x टू द पावर 3 एंड सो ऑन. तो हमने लूप चलाया 2 से लेकर n तक. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द वैल्यू ऑफ i विल बी 2, तो क्या करेगा, अंदर गया लूप के पहला स्टेटमेंट f इक्वल टू f इंटू आई एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, f इक्वल टू f इंटू आई जब करेगा तो f में क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 आ जाएगा. ठीक, फिर ये 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल है. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट s इक्वल टू s प्लस मैथ डॉट पीओडब्ल्यू x टू द पावर i अपॉन f में क्या कर रहा है, x की पावर i मीन्स i के लिए तो इस समय 2 है, तो x की पावर 2 तो निकाल दिया अपॉन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल भी 2 का फैक्टोरियल निकल रहा है. तो ये पहला टर्म आपका निकल आया. पहला टर्म निकलने के बाद लूप आगे चला तो i की वैल्यू कितनी हो गई 3. अगर 3 n से कम है तो लूप के अंदर जाएगा और f में फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देगा. तो f में 1 इंटू 2 तो ऑलरेडी था, तो इंटू 3 कर दोगे तो क्या निकल आएगा 3 फैक्टोरियल. ठीक, इसके बाद फिर x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये अगला टर्म निकल आया आपका. एंड इट विल कंटिन्यू द सेम प्रोसेस n टाइम्स. And after coming out of the loop, it will display the value of s. Is it clear now? Yes. Children, next series. If you compare this series with the previous one, which we have discussed right now, where is the change required? So minus sign. The sign, sir. Only plus and minus sign is the change, bro. Okay. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सो सी द फर्स्ट टर्म तो 1 होगा, उसमें 1 था. अब जो लूप चलाना शुरू कर रहा है, जहां लूप चला रहे हैं वो 2 से शुरू होगा, पर वो वाला टर्म क्या है नेगेटिव है. तो नॉर्मली प्रोग्राम में जो हम शुरू करते हैं वो प्लस से शुरू करते हैं, पर यहाँ जो टर्म है वो पहला जो है वो हम क्योंकि लूप 2 से चला रहे हैं सेकंड टर्म से शुरू कर रहे हैं. यहाँ जिस टर्म को हमें लेना है वो किस टाइप का है, वो आपका नेगेटिव है. इसलिए यहाँ पे हमें ध्यान रखना कि इस पॉइंट पे साइन की वैल्यू लूप से जस्ट पहले -1 से शुरू होगी. ठीक है, -1 से शुरू होगी. ओके, और हर बार हमें -1 से साइन की वैल्यू को चेंज करते रहना पड़ेगा. तो अभी किसी को पहले वाले में भी थोड़ी सी दिक्कत थी, इसलिए इसको फिर से हम थोड़ा सा देख लेते हैं. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. s की वैल्यू हमने ली है 1.0. ऑल राइट, f की वैल्यू 1, साइन इज -1. Now the loop starts, I starts with 2. The first statement f equal to f into I. Now value of f is representing factorial of 2. And here while writing this statement x to the power 2, look at this statement, s to the power 2 upon factorial of 2 into sin. तो ये x की पावर I है 2
into factorial, sorry, upon 2 फैक्टोरियल भी आ गया और इंटू साइन करेंगे तो वो -1 से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव में चला गया. आफ्टर दिस वी हैव चेंज द वैल्यू ऑफ साइन. सो साइन इंटू -1, साइन विल बिकम +1, पॉजिटिव हो जाएगा. देन द वैल्यू ऑफ आई विल इंक्रीमेंट, आई विल बिकम 3. If 3 is less than n, again this statement f equal to f into I, f will be updated and it will represent factorial of 6. Sorry, factorial of 3. Result will be 6. Factorial of 3 is 6, right? Then s again statement here. s में add हो रहा है x to the power 3 upon 3 factorial into +1 now. तो ये रिजल्ट आया वो जाके जुड़ जाएगा. एंड सो ऑन, इस तरह से प्लस माइनस होता रहेगा और अपने आप से सीरीज प्रोग्रेस करती रहेगी. Yes, sir. कोई डाउट किसी बच्चे को? No, sir. नो सर. नो. अब इस प्रेजेंटेशन में केवल इतने ही प्रोग्राम थे. ठीक है.